बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्लाइड्स में हम लोग काउंटर्स को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं एंड कुछ सर्किट्स इसमें से न्यू है लाइक सीरीज एंड पैरेलल काउंटर्स, वो देख लेते हैं। काउंटर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ रजिस्टर दैट गोज थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स upon the application of a sequence of input pulses, and the input pulses could be anything, a clock or originate from another source. काउंटर की डेफिनेशन आपको मैंने काउंटर्स के लेक्चर्स के स्टार्ट में भी डिटेल में बता दी थी, तो ये वही रिवाइज हुई हुई है इधर। और इनपुट पल्सेस एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जी इनपुट पल्सेस इज समथिंग, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड्स अपनी जो वीडियो लेक्चर्स दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया था कि क्लॉक की पल्सेस काउंट करके यू कैन इवन कम टू नो के कितनी पल्सेस पास ऑन हुई हैं क्लॉक की, एंड देन व्हाट काउंटर इट इज़, मतलब वो कहाँ तक काउंट कर रहा है। अगर 8 क्लॉक पल्सेस काउंट हुई हैं तो वो 0 से लेके 7 तक काउंट कर सकता है, एंड सो ऑन। Binary counter is something which can count up to the different binary values, and binary values हमें मालूम है कि हमारी किधर तक थी। n bit binary counter consists of n flip flops, जितनी number of bit होगी उतनी ही number of flip flops, and the binary value it can count up to 0 से लेके to the power n minus 1 तक। There are two types of counters. We are familiar with that now. Asynchronous counters, also known as Whipple counters, and synchronous counters. The difference between the two was this के asynchronous counters में there is a clock input which is known as a C input, यहाँ लिखा हुआ है जिसको, तो that clock input is always इस तरह है कि अगर a flip flop number 2 की जो clock है it is coming from the output of the flip flop number 1 of the previous flip flop. And synchronous counters में we have a clock input which is written C over here. This C input, which is a clock input, is same for all the flip flops. Asynchronous counters, also known as ripple counters. सबसे पहला सर्किट आपके पास है जी 4-bit ripple counter का। 4-bit means how many number of flip flops will be there? There would be four number of flip flops, and अच्छा, there is a difference between what I have taught you about the ripple counter and the circuit given over here. The difference is according to the due to the clock pulse. आपको जब तक जितने एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाए थे रिपल काउंटर्स के बारे में बात करी हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंक्रोनस काउंटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिंक्रोनस काउंटर्स, रिपल काउंटर्स। रिपल काउंटर्स में जब आप वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो मैंने आपको जो क्लॉक इनपुट की एग्जाम करवाई थी, जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं उसमें जो क्लॉक इनपुट है दैट इज हैविंग अ बबल. Bubble means that that asynchronous counter are working at the negative edge of the clock. ठीक हो गया. The circuit shown over here in this slide is clock pulse is positive edge. ये देखिएगा, there is no bubble involved at the input of the clock, so this means this is positively edge triggering flip flop. So the difference क्या आ जाएगा आपको, difference क्या आ जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू मैं आपको एक important points बता देती हूँ. When we talk about this, these are the 4 important points. When your clock only in case of asynchronous inputs, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं बार बार asynchronous clock flip flops के बारे में क्यों बात कर रही हूँ. I'm not talking about the synchronous flip flops. Asynchronous counters के दौरान when the clock is having a bubble, it means that is negative edge triggered counter. When we are talking about the negative edge triggered counter and we want to design up counter, तो मैंने आपको, आप अगर वीडियो लेक्चर्स दोबारा निकाल के रिवाइज करें, सो यू विल सी फॉर द अप काउंटर तो कौन सी फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की जो क्लॉक थी वो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से आती थी, और वो आउटपुट क्या थी फॉर द अप काउंटर, दैट वाज क्यू से आ रही थी फॉर डिजाइनिंग द अप काउंटर. व्हेन वी टॉक अबाउट द negative edge triggered clock, and for the designing of the down counter हमारे पास negative edge triggered में जो clock बनती थी previous flip flops की वो कब किधर से आती थी, वो Q bar of that flip flop से आ रही थी. या आप वो वीडियो लेक्चर्स निकाल के देखेंगे तो मैंने बड़े डिटेल में बताया हुआ कि for the up counter Q से आ रही है and for the down counter Q bar से आ रही है. But when we talk about a positive edge triggered clock, then in asynchronous counters, if the clock is positive edge triggered, then for designing the up counter आप क्या करेंगे, Q bar of flip flop number 1 will become the clock of flip flop number 2, and then so on. Similarly, for the positive edge triggered, when you have to design the down counter, then Q will be the clock of flip flop number 2,
and this Q is coming from the flip flop number 1. आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की इसलिए कराई थी क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक इज अ नॉर्मल एग्जाम्पल जो कि आप देख सकें. उसका डिजाइनिंग बहुत सिंपल है. फॉर अप काउंटर यू नो दैट the clock will be coming from the Q of the previous flip flop, and for the down counter the clock will be Q bar of the previous flip flop. Positive edge triggered की example बहुत रेयरली आपको कुछ बुक्स में नज़र आ जाएंगी, लेकिन मोरिस मानो कि अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखें तो उसने मैक्सिमम बुक जो मैंने लेटेस्ट देखी थी उसमें उसने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक के साथ ही एग्जांपल सॉल्व करवाई हुई है. बट ये शायद बाद की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख के बताए हुए हैं ये बात आपको शायद मोरिस मानो की किसी एक आध एडिशन में मिल सकती है, बट मैक्सिमम बुक्स में ये बात नहीं मेंशन होती. मैक्सिमम बुक्स क्या करते हैं, द ईजिएस्ट वन इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक, वो डिज़ाइन बता देते हैं और वही पढ़ा देते हैं. बट चूंकि इस स्लाइड में पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक भी यूज हुई थी, इसीलिए मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख के भी बता दिए. सो यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस. अब आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ हुआ है इस स्लाइड में, एंड डी फ्लिप फ्लॉप में एक बात याद रखिएगा, एसिंक्रोनस काउंटर्स में मैं पहले ये बात बता दूं कि एसिंक्रोनस काउंटर्स में ही हम क्यों कहते हैं कि क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो, तो हमारे पास वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग इन डिजाइनिंग. उसकी वजह यह है एसिंक्रोनस काउंटर्स आर द ओनली काउंटर्स जिसमें क्लॉक जो एक फ्लिप फ्लॉप की बनती है दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. सिंक्रोनस काउंटर्स में पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक हो या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक हो, सिंक्रोनस काउंटर्स में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी रीजंस, सिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक जो है वो साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एट अ टाइम ही जारी होती है. ठीक है, सब में शेयर्ड एक ही क्लॉक पल्स होती है. ठीक है, इसी वजह से सिंक्रोनस काउंटर में पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ले लें तो उसका मतलब है सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपनी आउटपुट को पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पे अपडेट कर देंगे, और अगर क्लॉक आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ले लें सिंक्रोनस काउंटर में तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपनी आउटपुट को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पे अपडेट कर देंगे. एसिंक्रोनस काउंटर में पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज का फर्क इसीलिए पड़ जाता है, उसकी रीजन ही यही है कि आपके पास जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक होती है दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक इज प्रेजेंट इन आवर एसिंक्रोनस काउंटर्स. अगर आपको नॉर्मल डिजाइनिंग एसिंक्रोनस काउंटर्स की आए तो आई वुड प्रिफर कि आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक से ही डिजाइन बनाएं. उसकी रीजन ये है इट इज अ वेरी सिंपल वन एंड ईजी एज कम्पेयर टू अगर आप काउंटर को देख लें और डाउन काउंटर को देख लें, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको, क्योंकि एसिंक्रोनस डिजाइनिंग जब आएगी तो उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा होता कि अच्छा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड करना है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करना. सो यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा मैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बना लूँ, तो मैंने उससे एग्जांपल्स थ्रू आउट देखी हुई है, बुक्स में भी मैक्सिमम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो आई कैन डिजाइन दैट इजीली. अनटिल अनलेस आप को गिवन फिगर ना हो और उसमें पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड गिवन ना हो, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि अच्छा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, नाउ व्हाट काइंड ऑफ काउंटर डायग्राम इज shown to you, is it up counter or is it down counter. Then you have to see कि अच्छा Q bar of the clock का क्या हिसाब रहेगा और वो up counter बन जाएगा for the positive edge trigger. अच्छा, नाउ कम टू द स्लाइड में ये वाला जो सर्किट है उसमें डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमें मालूम है. डी फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं. डी फ्लिप फ्लॉप में अगर आपने उसको एसिंक्रोनस काउंटर्स में मैंने आपको जो एग्जांपल्स करवाई थी वो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ करवाई थी, और जेके फ्लिप फ्लॉप्स मैंने आपको बताया था जेके फ्लिप फ्लॉप में टोगलिंग स्टेट इज व्हाट वी टेक एडवांटेज एंड वी यूज दैट इन डिजाइनिंग ऑफ आवर एसिंक्रोनस काउंटर्स. सिमिलरली मैंने आपको बताया था जेके फ्लिप फ्लॉप की जगह हम टी टोगल फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप टोगल स्टेट उसमें टी को 1 रख दें तो हमारे पास आ जाती है. What about the D flip flop? How you will create a toggling state in your D flip flop? What we do in our D flip flop is purely D flip flop. This D flip flop में अगर आपने toggling state अक्कर करवानी है, क्यों? क्योंकि अब इसमें JK फ्लिप फ्लॉप नहीं यूज हुआ हुआ. यू कैन सी दैट ये एसिंक्रोनस की जो एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है 4 बिट काउंटर की, इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि वीडियो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर से उनसे डिफरेंट है. एक पहला है कि देयर इज अ डी फ्लिप फ्लॉप इन्वॉल्व ओवर हियर. पहली बात, उसमें हमारे पास क्या है, अगर डी फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें टोगलिंग स्टेट अक्कर करवाने के लिए व्हाट वी डू इज ऑलवेज फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप क्यू कॉम्प्लीमेंट से फीडबैक पे वापस इसको ले जाके डी में इनपुट में दे देंगे तो ये डी फ्लिप फ्लॉप टोगलिंग स्टेट में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वी नो दैट डी पे जो भी इनपुट आती है दैट इज अपीयरिंग एट दी आउटपुट. तो क्या होगा, यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ अपीयर होता है, तो यही कॉम्प्लीमेंट यहाँ वापस जाएगा तो ये यहाँ अपीयर हो जाएगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा तो यहाँ अपीयर हो जाएगा. तो इन दिस वे डी फ्लिप फ्लॉप को टोगलिंग स्टेट में ले जाने के लिए
अगर आपने एज अ टोगलिंग स्टेट अक्कर करवानी है इन योर डी फ्लिप फ्लॉप, तो व्हाट वी डू इज क्यू कॉम्प्लीमेंट को हमेशा हम डी में इनपुट में दे देते हैं. सो अब आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप की टोगलिंग स्टेट की तरीके से काम कर सकता है. दूसरी चीज जो डिफरेंस है दैट इज अ क्लॉक पल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू डिजाइन अपवर्ड काउंटिंग सीक्वेंस इन योर दिस 4-bit ट्रिपल काउंटर. सो अपवर्ड है और हमारे पास क्लॉक पल्स क्या शोन है, हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स शोन है. तो इट मीन्स फॉर अप काउंटिंग अकॉर्डिंग टू दोज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई हैव शोन टू यू, उसमें हमारे पास क्या है अपवर्ड काउंटिंग के लिए, द क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 विल बिकम द क्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 2. ठीक हो गया. एंड देन क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 विल बिकम द क्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 3. एंड देन Q complement of flip-flop number 3 will become the clock of flip-flop number 4. This is for upward counting. अब upward counting, अच्छा ये डायग्राम के अलावा अगर आप ये पूछें कि अच्छा मिस अगर नेगेटिव ट्रिगर्ड के लिए हम डायग्राम बनाते हैं जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व हुई हुई थी जो कि मैंने करवाई हुई है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ये देखिएगा दिस डायग्राम, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम्स इन योर बुक्स. अब मुझे मालूम नहीं आपके पास कौन सा एडिशन हो मौजूद, इसीलिए ये मैंने एक डायग्राम मोनिस मानो की बुक में से उठाई है जिसमें अब वही वाली बात है, किसी एडिशन में उसने पॉजिटिव ट्रिगर से काम करवाया हुआ और किसी में उसने नेगेटिव से काम करवाया हुआ है. सो टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, मैंने आपको हर तरीके से डायग्राम दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी के पास कोई भी मुख्तलिफ एडिशन मौजूद है तो वो इस बात का बहुत ध्यान रख ले कि व्हाट अबाउट द पॉजिटिव एज एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव एज कंडीशन ऑफ द क्लॉक्स. दिस इज दैट डी फ्लिप फ्लॉप. क्या है आपके पास टोगलिंग स्टेट अक्कर करवानी थी, ये बात तो आपकी सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप की हर हाल में है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टोगलिंग स्टेट इन योर डी फ्लिप फ्लॉप, सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू, यू विल गिव योर क्यू कॉम्प्लीमेंट बैक टुवर्ड्स द डी इनपुट. अब क्या होगा, ये डी फ्लिप फ्लॉप हमेशा टोगलिंग स्टेट में चला जाएगा. वी आर गोइंग टू डिजाइन asynchronous up counter. asynchronous काउंटर में आई कैन सी दैट कि यहाँ क्लॉक में बबल है. अगर क्लॉक में बबल है तो वी नो what will happen for the up counter. ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव एज ट्रिगर तो Q will become the clock. देखिएगा ये Q है ना, Q यहाँ होता है और ये Q कॉम्प्लीमेंट होता है, तो देखिएगा Q की आउटपुट से इट इज गोइंग इन फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की क्लॉक, ये देखिएगा. एंड देन फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 का Q इज गोइंग to become the clock of the flip flop number 3, and similarly flip flop number 3 का output which is Q is going to become the clock of flip flop number 4. जब पॉजिटिव एज ट्रिगर था, जो भी मैंने आपको डायग्राम स्लाइड में दिखाई, उसमें क्या हुआ, Q complement is becoming the clock of the next flip flop. Then we were designing the up counter. I'll show you again this one. ये देखिएगा Q complement. So there is a difference between the positive edge triggered clock and the negative edge triggered clock while designing your ripple counters. ये आपको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के साथ मैंने दिखा दिया, जो मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक के साथ ही सॉल्व करवाई है. इसीलिए नाउ व्हाट अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक. अच्छा 4-bit काउंटर वहाँ गिवन है, मैं 2-bit की एग्जांपल के थ्रू आपको वेवफॉर्म्स वगैरह के थ्रू ये बात समझा देती हूँ. देन वही वाली बात है, जब आपको 2-bit आ जाएगा तो 3-bit 4-bit ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. आई एम गोइंग टू शो यू द वर्किंग ऑफ द अप काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप एंड अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ द क्लॉक. ये 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 2-bit. नाउ 2-bit के थ्रू मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रही हूँ. अब इसकी वेव फॉर्म पे गौर कीजिएगा. व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये देखिएगा क्लॉक पल्स, वी बिगिन विद दिस अजम्पशन कि Q1 एंड Q0 पे 1-1 है. ये देखिएगा इसकी वेव फॉर्म बता रही, दिस इज 1 ओवर हियर, दिस इज 1 ओवर हियर. अच्छा क्लॉक पल्स पहला पॉजिटिव एज आया क्लॉक का तो किसको ट्रिगर करेगा, ये पहला क्लॉक का पॉजिटिव एज आया तो Q0 ट्रिगर होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि उस पर क्लॉक डायरेक्टली अटैच है. तो ये देखिएगा पहला एज ऑफ द क्लॉक आया, तो अगर इन दोनों जगहों पे ऑलरेडी 1-1 मौजूद था तो इसका कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग बैक, तो यहाँ 0 आ गया. एंड देन इधर भी कॉम्प्लीमेंट था, अगर यहाँ मैंने एजम्पशन की हुई है कि जी ये देखिएगा वेव फॉर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ भी 1 है Q1 में, तो यहाँ 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 है, तो ये 0 यहाँ आ गया. तो अब जब पहला एज ऑफ द क्लॉक आया तो पहले एज ऑफ द क्लॉक में क्या हो गया, ये 0 हो गया. जब ये 0 हुआ तो ऑब्वियसली ये 1 गया, इसकी क्लॉक एक्टिव हुई और इसने भी अपनी आउटपुट पे 0 दे दिया, अपडेट कर लिया. तो क्या आ गई, पहली स्टेट हमारी आ गई 0-0, ये हमारी पहली स्टेट है. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आया. नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक में अब आपके पास क्या होगा, आपके पास Q0 ट्रिगर करेगा. We want Q1 to toggle on the falling edge of Q0. We must clock the second flip flop from the Q0
not of the first flip-flop.